And today we want to think about something very, very important, very, very crucial. आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास बात के बारे में विचार करना चाहते हैं, And that is God's plan for an excellent marriage. और वह है एक उत्कृष्ट विवाह के लिए परमेश्वर की योजना। I believe this is very crucial in the days in which we live. मेरा मानना है कि आज जिन दिनों में हम जी रहे हैं उनमें यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। The Pharisees once came to Jesus, we read in Matthew chapter 19, to test him. एक बार फरीसी प्रभु यीशु की परीक्षा लेने के लिए उसके पास आए। हम मत्ती 19 में इसे पढ़ते हैं, उनकी परीक्षा लेने। And asked him in verse 3, is it lawful for a man to divorce his wife for any reason? और वचन 3 में उनसे पूछा, क्या किसी व्यक्ति के लिए किसी भी कारण से अपनी पत्नी को तलाक देना उचित है? And Jesus' reply was, haven't you read that he who created them from the beginning made them male and female, and he went on to say the two shall become one flesh. प्रभु यीशु का उत्तर था, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें आरंभ से बनाया उसी ने उन्हें नर और नारी बनाकर कहा वे दोनों एक तन होंगे। Consequently, they are no more two, but one. And what therefore God has joined together, let no man separate. परिणाम स्वरूप वे अब दो नहीं बल्कि एक ही हैं, और जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। The point I want you to notice here is that even though under the Old Testament Moses had permitted divorce, as the Pharisees pointed out in Matthew 19 verse 7, मैं चाहता हूं कि आप यहाँ ध्यान दें, भले ही पुराने नियम के तहत मूसा ने तलाक की अनुमति दी थी, जैसा कि फरीसियों ने मत्ती 19:7 में बताया, that was only a temporary arrangement. यह केवल एक अस्थायी व्यवस्था थी। Jesus said, if you want to know God's perfect will, go back to the beginning. That's what he said in verse 4. From the beginning. प्रभु यीशु ने कहा, यदि आप परमेश्वर की पूर्ण इच्छा जानना चाहते हैं तो शुरुआत में वापस जाएं। यही तो उन्होंने पद 4 में कहा, आरंभ से। So if we want to understand what God's will is for a man and a woman, we must go back to Genesis chapter 2. इसीलिए यदि हम यह समझना चाहते हैं कि एक पुरुष और एक महिला के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, तो हमें उत्पत्ति अध्याय 2 पर वापस जाना चाहिए। That's what Jesus quoted here in verse 5. A man shall leave his father and mother and cleave to his wife, and the two shall become one flesh. यही प्रभु यीशु ने यहाँ मत्ती 19:5 में उसका हवाला दिया कि एक मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। So he said there's no question of divorce. उन्होंने कहा, इसलिए तलाक का कोई सवाल ही नहीं उठता। Now, unfortunately, among Christians also, who are supposed to be the light of the world, a lot of marriages are not happy. दुर्भाग्य से मसीहों में भी, जिन्हें दुनिया के लिए रोशनी होना चाहिए, बहुत सारे विवाह जीवन खुश नहीं है। They are not divorced in the sense that they have not separated and gone to live in separate homes. उनका तलाक नहीं हुआ है इस अर्थ में कि वे अलग नहीं हुए हैं और अलग अलग घरों में रहने नहीं गए हैं। But there is a separation in spirit. Though they are not divorced physically, they are divorced in spirit. लेकिन आत्मा में अलगाव है। हालांकि उनका शारीरिक रूप से तलाक नहीं हुआ है, लेकिन वे आत्मा से तलाकशुदा है। You can be living in the same house for 20 years and live as two lonely individuals in the same house. आप 20 वर्षों तक एक ही घर में रह सकते हैं और दो अकेले व्यक्तियों की तरह रह सकते हैं। And then you're not fulfilling God's purpose for your marriage. तो फिर आप अपने विवाह के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। Because God's purpose is that two shall become one. क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि दो मिलकर एक हो जाएं। That is God's plan. Two should become यही one. परमेश्वर की योजना है, दो एक हो जाएं। And we need to see why two are not becoming one. हमें यह देखना होगा कि दो एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं। If you go back to the beginning, यदि हम शुरुआत पर वापस जाएं, in Genesis chapter 2, उत्पत्ति अध्याय 2 में we read that it was not Adam who went to God and said, Lord, I'm feeling lonely. Can you please give me a wife? तो वहां हम पढ़ते हैं कि यह आदम नहीं था जो परमेश्वर के पास गया और कहा, हे प्रभु, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, क्या आप कृपया मुझे एक पत्नी दे सकते हैं? Isn't that interesting? That it was God who said, verse 18, when he looked at man, it's not good for man to be alone. I will make him a helper suitable for him.
क्या यह दिलचस्प नहीं है? यह परमेश्वर ही थे जिसने कहा उत्पत्ति 2:18 में, जब उसने मनुष्य की ओर देखा कि मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहायक बनाऊंगा। Now, why didn't God make Adam and Eve simultaneously at the same time? अब प्रश्न यह है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक साथ एक ही समय में क्यों नहीं बनाया? He could have done it very easily. वह इसे बहुत आसानी से कर सकते थे। It says he took the dust of the ground and he made Adam. At the same time, he could have made Eve and breathed into both of them the breath of lives. यह यहाँ कहता है, उन्होंने भूमि की मिट्टी ली और आदम को बनाया। उसी समय वो हव्वा को बना सकते थे और उन दोनों में जीवन की सांस फूंक सकते थे। And so that as soon as their eyes were opened, they would see each other. ताकि जैसे ही उनकी आंखें खुले तो वे एक दूसरे को देख सकें। Why did he make Adam first alone उन्होंने आदम को पहले अकेले क्यों बनाया and then little while later put him to sleep and pull out his rib and make a woman? और कुछ समय बाद उसे सुला दिया, उसकी पसली खींच ली और एक स्त्री बना दी? There is a reason. एक अच्छा कारण है। There's something spiritually that God was trying to tell both Adam and Eve. कुछ आध्यात्मिक बात है जो परमेश्वर आदम और हव्वा दोनों को बताने की कोशिश कर रहे थे, Which is the secret of how two can become one. जो इस बात का रहस्य है कि दो लोग एक कैसे बन सकते हैं। And what was that? वह रहस्य क्या था? When God made Adam and his eyes were opened, he suddenly got life. जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, जब उसे जीवन मिला और उसने अपनी आंखें खोली, Who was the first person he saw? तो उसने सबसे पहले किस व्यक्ति को देखा? You know the answer. God. आप उत्तर जानते हैं, परमेश्वर को। He met God. He talked to God. वह परमेश्वर से मिले, उसने परमेश्वर से बात की। He had no wife. उसकी कोई पत्नी नहीं थी। It was just him and God. यह सिर्फ वह और परमेश्वर थे। Much later, he got a wife. बहुत बाद में उन्हें एक पत्नी मिली। So what was God trying to teach Adam through that? तो फिर परमेश्वर उसके माध्यम से आदम को क्या सिखाने की कोशिश कर रहे थे? He was trying to teach Adam one simple lesson, वह आदम को एक सरल सबक सिखाने की कोशिश कर रहे थे that I must be first in your life at all times. कि तुम्हारे जीवन में हर समय मुझे प्रथम होना चाहिए। Before you see your wife, you must see me. पत्नी को देखने से पहले तुम्हें मुझे देखना होगा। More than you value your wife, you must value me. जितना तुम अपनी पत्नी को महत्व देते हो, उससे अधिक तुम्हें मुझे महत्व देना चाहिए। That's why he made Adam alone इसीलिए उन्होंने आदम को अकेला बनाया and fellowshiped with him before a wife even existed. और पत्नी के अस्तित्व में आने से पहले ही उनके परमेश्वर के साथ संगति की। What shall we learn from this? हम इससे क्या सीखते हैं? That throughout our life, even if you're married for 50 years or 75 years, God must always be first every day. कि आपके पूरे जीवन में भले ही आपकी शादी को 50 साल या 75 साल हो गए हो, परमेश्वर को हमेशा हर दिन सबसे पहले आना चाहिए। Many people start with their wives first if they are fallen in love with each other. बहुत से लोग अगर एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं तो सबसे पहले अपनी पत्नियों से शुरुआत करते हैं। In some cases, the parents are first. कुछ मामलों में माता पिता पहले होते हैं, But let me go into that later. लेकिन मुझे उस पर बाद में बात करने दीजिए। Let me now speak about the creation of Eve. अब मैं हव्वा की सृष्टि के बारे में बात करना चाहता हूँ। God put Adam to sleep. It says, a deep sleep. It's mentioned in verse 21. परमेश्वर ने आदम को सुला दिया, गहरी नींद का उल्लेख किया गया है उत्पत्ति 2:21 में। So that he couldn't even wake up. And he took one of his ribs, Genesis 2:21, closed up the flesh, and he made a woman out of that rib. ताकि वो जाग भी न सके, फिर उन्होंने उसकी एक पसली निकाली, उसे मांस से बंद कर दिया और उस पसली से एक स्त्री बनाई। Now, as soon as God made a woman out of that rib, when God breathed into Eve and she got life and her eyes were opened, whom did she see first? अब जैसे ही परमेश्वर ने उस पसली से एक स्त्री बनाई, जब परमेश्वर ने हवा में सांस फूकी, जब उसने उसे जीवन मिला और उसकी आंखें खुली, तो उसने सबसे पहले किसे देखा? Not Adam.
She did not even know of the existence of Adam. आदम नहीं, वो आदम के अस्तित्व के बारे में भी नहीं जानती थी। She thought she was the only human being created. उसने सोचा कि वो सृजित एकमात्र इंसान है। She didn't know anything about Adam. वह आदम के बारे में कुछ नहीं जानती थी। Her eyes were open and she saw God. उसकी आंखें खुली और उसने परमेश्वर को देखा। Exactly like when Adam was created. ठीक वैसे ही जैसे जब आदम को बनाया गया था। Adam was somewhere else in the garden, fast asleep. आदम बगीचे में कहीं और गहरी नींद में सो रहा था। He did not know about her existence and she did not know about his existence. वह उसके अस्तित्व हव्वा के बारे में नहीं जानता था और वह उसके अस्तित्व आदम के बारे में नहीं जानती थी। She met God. God was the first person to speak to her. वह परमेश्वर से मिली। परमेश्वर उससे बात करने वाले पहले व्यक्ति थे। And only much later did God bring her to Adam. और बहुत बाद में परमेश्वर उसे आदम के पास ले आए। So what was God trying to teach Eve? The same lesson he was trying to teach Adam. I must be first in your life. तो फिर परमेश्वर हवा को क्या सिखाने की कोशिश कर रहे थे? वही सबक वह आदम को सिखाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे जीवन में मुझे प्रथम स्थान पर होना चाहिए। You must have fellowship with me before you fellowship with your husband. अपने पति के साथ संगति करने से पहले तुम्हें मेरे साथ संगति करनी होगी। Do you understand that now? God's plan for an excellent marriage. क्या अब आप एक उत्कृष्ट विवाह के लिए परमेश्वर की योजना को समझते हैं? Adam had to fellowship with God before he fellowshipped with Eve. आदम को हवा के साथ संगति करने से पहले परमेश्वर के साथ संगति करनी थी। Eve had to fellowship with God before she fellowshipped with Adam. हवा के साथ संगति करने से पहले आदम को परमेश्वर के साथ संगति करनी थी। It is all written there. यह सब वहाँ लिखा From the है। beginning, this is how God intended. आरंभ से परमेश्वर ने विवाह को इसी प्रकार चाहा था। And when God himself is between a husband and wife, जब परमेश्वर स्वयं पति और पत्नी के बीच होते हैं, and where each person in the marriage, each partner seeks to put the Lord first in their personal life, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति और विवाह में भागीदार अपने निजी जीवन में परमेश्वर को पहले स्थान पर रखना चाहते हैं, you know what will happen? तो आप जानते हैं कि क्या होगा? They will be glued together. वे एक साथ चिपके जाएंगे। God is the greatest binding force in the universe. परमेश्वर संसार में सबसे बड़ी बांधने वाली शक्ति है। When he holds two people together, it is impossible for anybody to separate them. जब वह दो लोगों को एक साथ रखता है तो उन्हें अलग करना किसी के लिए भी असंभव है। Not the devil, not demons, not the whole world, not circumstances, not poverty, not even death. When God holds two people together. न शैतान, न दुष्ट आत्माएं, न परिस्थितियां, न गरीबी, न पूरी दुनिया, यहाँ तक कि मृत्यु भी उन्हें अलग नहीं कर सकती जब परमेश्वर दो लोगों को एक साथ जोड़ता है। And if God is not there to hold people together, then people are held together by other forces. लेकिन जब परमेश्वर दो लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए मौजूद नहीं है तो लोगों को अन्य ताकतों द्वारा एक साथ रखा जाता है। And the other forces are not as strong. लेकिन बाकी ताकतें उतनी मजबूत नहीं है। I don't know whether you've seen an advertisement for this adhesive called Fevicol. मुझे नहीं पता कि आपने फेविकॉल नामक इस चिपकाने वाली वस्तु का विज्ञापन देखा है या नहीं। One of the advertisements I've seen it, and it's pictured in some of the bottles of Fevicol that they sell, where two things are stuck together, and on each side an elephant is trying to pull it, and they can't separate it. एक विज्ञापन जो मैंने देखा है उसमें फेविकॉल की कुछ बोतलें में भी इसका चित्र है जिसमें दो चीजें आपस में चिपकाई हुई है और दोनों तरफ एक हाथी उसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं और वे उसे अलग नहीं कर पा रहे हैं। Husband and wife are joined together by God. It's even greater than that. जब एक पति और पत्नी को परमेश्वर एक साथ जोड़ता है तो यह उससे भी महान होता है। No elephants can separate them, no demons can separate them, no human beings can separate them. But they must have God in the middle. कोई भी हाथी उन्हें अलग नहीं कर सकता, कोई भी दुष्ट आत्मा उन्हें अलग नहीं कर सकती, कोई भी इंसान उन्हें अलग नहीं कर सकता, लेकिन उनके बीच में परमेश्वर होना चाहिए। God is a greater joiner than Fevicol or Araldite or anything or super glue. परमेश्वर फेविकॉल या एरलडाइट या किसी भी अन्य सुपर ग्लू से भी बड़ा जोड़ने वाला है। God in between husband and wife will join you both together in such a way that nothing can separate you. पति और पत्नी के बीच में परमेश्वर होना चाहिए, वो आप दोनों को इस तरह से जोड़ देंगे कि कोई भी चीज आपको अलग नहीं कर सकेगी। And so you have to be very careful that between both of you as husband and wife or wife and husband, nothing other than God comes.
इसलिए आपको बहुत सावधान रहना होगा कि आप दोनों के बीच पति और पत्नी या पत्नी और पति परमेश्वर के अलावा किसी और चीज को आने नहीं देना चाहिए। What is the binding force in many marriages? In young people, it's very often good looks. युवा लोगों में अनेक विवाह को जोड़ने वाली शक्ति क्या है? यह अक्सर अच्छा दिखना होता है। A boy likes a girl because she's got good looks. Now, good looks are not good enough to hold a marriage together for 50 years. एक लड़के को एक लड़की इसलिए पसंद आती है क्योंकि वह अच्छी दिखती है। अब महज अच्छी शक्ल सूरत ही किसी विवाह को 50 साल तक कायम रखने के लिए काफी नहीं है। Look at all these marriages where people marry someone for good looks. In 3 months they are fighting with each other. इन विवाहों को देखिए जहां लोग अच्छे दिखने के लिए किसी से विवाह करते हैं और 3 महीने के भीतर ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। It can't hold. यह टिक नहीं सकता। Now, we're not against good looks. By all means, marry a good-looking girl. But that's not the main factor. हम अच्छी शक्ल सूरत के खिलाफ नहीं है। हर हाल में एक अच्छी दिखने वाली लड़की से विवाह करे, लेकिन वह मुख्य कारक नहीं होना चाहिए। It'll never hold a marriage together. यह कभी भी विवाह को एक साथ जोड़े नहीं रखेगा। What do many girls choose a boy for? कई लड़कियां क्या देखकर लड़का चुनती हैं? Good job, अच्छी नौकरी, good family, अच्छा परिवार, a lot of money. ढेर सारा पैसा। You think that's going to hold a marriage together? Never. क्या आपको लगता है कि यह विवाह को एक साथ जोड़ सकता है? कभी नहीं। Some boys will marry girls because they get a big dowry. कुछ लड़के लड़कियों से इसलिए विवाह करेंगे क्योंकि उन्हें बड़ा दहेज मिलेगा। That'll never hold a marriage together. इससे भी कभी विवाह एक साथ जुड़ा नहीं रहेगा। It's impossible. यह असंभव है। The way God did it from the beginning is the way a marriage is held together, where the Lord is first. जिस तरह से परमेश्वर ने शुरू से ही किया है, उसी तरह से विवाह एक साथ जुड़ा रहेगा जहां परमेश्वर पहले स्थान पर होते हैं। And where each person has a relationship with God which is greater than their relationship with each other. जहां प्रत्येक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ एक रिश्ता होता है जो एक दूसरे के साथ उनके रिश्ते से बड़ा है। In other words, if you're a husband, you must not seek to be first in your wife's affections. The Lord must be first in her affections. दूसरे शब्दों में, यदि आप एक पति हैं तो आपको अपनी पत्नी के स्नेह में प्रथम स्थान पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर को उसके स्नेह में सबसे पहले होना चाहिए। And if you're a wife, the Lord must be first in your husband's affections, and you must be second. यदि आप एक पत्नी हैं तो आपके पति के स्नेह में प्रभु को पहले स्थान पर होना चाहिए और आपको दूसरे स्थान पर होना चाहिए। And those who put the Lord first and walk in the light, the Bible says in 1 John 1:7, जो लोग प्रभु को प्रथम रखते हैं और प्रकाश में चलते हैं, जैसा कि बाइबल 1 यूहन्ना 1:7 में कहती है, if we walk in the light as God is in the light, we have fellowship one with another. यदि हम प्रकाश में वैसे चले जैसे परमेश्वर प्रकाश में है, तो वे एक दूसरे के साथ संगति रखेंगे And the two are held together. और दो एक साथ जुड़े रहेंगे। Now, what are the things that can come between a husband and wife? अब ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक पति पत्नी के बीच आ सकती है? It could be parents. ये माता पिता हो सकते हैं। It says Genesis 2:24, a man must leave his father and his mother and cleave to his wife. उत्पत्ति 2:24 में कहा गया है, मनुष्य को अपने माता और पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ जुड़े रहना चाहिए। Then only they can become one flesh. केवल तभी वे एक तन बन सकते हैं। Notice there what it says in that verse. फिर से ध्यान दे कि वह वचन क्या कह रहा है। You have to leave something and then you can cleave. आपको कुछ छोड़ना होगा और फिर आप उससे जुड़ सकते हैं। If you try to cleave without leaving, you'll never become one. यदि आप बिना छोड़े अलग होने का प्रयास करेंगे तो आप कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। Isn't that amazing? क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? That is the one commandment given in scripture for us before sin came into the world. Leave your father and mother. पाप के संसार में आने से पहले ही पवित्र शास्त्र में हमारे लिए यही एक आज्ञा दी गई थी, अपने माता और पिता को छोड़ दो। I want to ask you who are married. Have you left your father and mother? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो शादीशुदा है, क्या आपने अपने माता और पिता को छोड़ दिया है? I don't mean physically. By all means, care for them, take care of them till their dying day. We should. We have to honor our parents. मेरा मतलब शारीरिक रूप से नहीं है। हर तरह से उनकी देखभाल करो, उनके मरने के दिन तक उनकी देखभाल करो। हमें ऐसा करना चाहिए। हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। But don't let them come between you in your married life. लेकिन उन्हें अपने और अपनी शादीशुदा जिंदगी के बीच न आने दे। You must leave them emotionally.
आपको उन्हें भावनात्मक रूप से छोड़ देना चाहिए। They brought you up for so many years, that's good. उन्होंने तुम्हें इतने सालों तक पाला और बड़ा किया है, यह अच्छा है। But now that you're married, you've got to leave them. लेकिन अब जब आप शादीशुदा हैं तो आपको उन्हें छोड़ना होगा। And it's because many a husband has not left his emotional attachment to his parents that there's confusion in his married life. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई पतियों ने अपने माता पिता से भावनात्मक लगाव नहीं छोड़ा है, जिससे उनके वैवाहिक जीवन में उलझन बनी रहती है। Many a wife has not left her emotional attachment to her parents. They are not united to their husbands. कई पत्नियों ने अपने माता पिता के प्रति अपना भावनात्मक लगाव नहीं छोड़ा है और वे अपने पतियों के साथ एकजुट नहीं है। This is the tragedy. The Lord is not first. यही त्रासदी है, परमेश्वर पहले नहीं है And there are parents in between interfering in their life. और बीच में माता पिता है जो उनके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। Sometimes a job. Maybe your job which is so important for you. But anything other than God. It may be money. It may be being occupied with so many things. Maybe your children. Them come between you as husband and wife. कभी कभी आपका काम होता है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और विवाह के बीच आता है। परमेश्वर के अलावा कुछ भी हो सकता है, वह पैसा हो सकता है, वह कई चीजों में व्यस्त होना हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं जो आपके पति और पत्नी के बीच आते हैं। That often happens in India, but it should never be. भारत में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। What is the answer to a happy marriage? Here is the first answer. सुखी विवाह का उत्तर क्या है? यहाँ पहला उत्तर है, Put the Lord first. In every situation, walk in the light, judge yourself. हर स्थिति में प्रभु को पहले रखे, प्रकाश में चले, स्वयं का मूल्यांकन करे। And you'll find a binding force between you and your marriage partner that nothing can destroy. और आप अपने और अपने विवाह साथी के बीच एक बंधनकारी शक्ति पाएंगे जिसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता।